اب چوتھی اور پانچویں جماعت میں عادات کے تحت سکھایا جانے والا ایک اور اہم موضوع عادات کا موازنہ ہے۔ دو عادات کو دے کر ان کا موازنہ کرنے کے لیے مقامی قیمت کے تصور کی پہچان اچھی طرح ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں ہم دو عادات کو لیں گے، 239 ایک عدد اور دوسرا عدد 351۔ اب ان دونوں عادات کا موازنہ کرنا ہے۔ اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بار سکھاتے ہوئے ٹی ایل ایم کو استعمال کرتے ہوئے بتایا جا سکتا ہے۔ 239 کے لیے کوئی ایک ٹی ایل ایم کا استعمال کریں گے، 239۔ اس کو مقامی قیمت پر رکھ کر بھی دکھایا جا سکتا ہے، یا پھر بچوں کو اس کی پہچان اچھی طرح ہو گئی ہو تو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، ہے نا؟ 239 ہیں۔ اسی طرح 351، 1 سینکڑا، 2 سینکڑے، 3 سینکڑے، 50، 3، 4، 5 دہائیاں اور 1 اکائی۔ ہم نے ایک ہندسی عدد میں موازنہ کیا ہوا ہے۔ کیسے کیے تھے؟ ایک سے ایک کو جوڑ کر 1 to 1 کورسپونڈنس کے ذریعے۔ یہاں اس طرح کرنے کی بجائے، چونکہ بچوں کو گنتی معلوم ہے، کون سا عدد بڑا ہے اور کون سا چھوٹا یہ بھی معلوم ہے، اس تصور کو لے کر یہاں سکھائیں گے۔ اب موازنہ کرتے ہوئے اکائی سے کرنا چاہیے، دہائی سے کرنا چاہیے یا سینکڑے سے کرنا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو بڑا ہے اس سے موازنہ کرنا ہے، یہ ہم نے سیکھا ہے، ہم جانتے ہیں۔ لیکن بچوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، ان کو معلوم کروانا ہے۔ بڑے عدد سے موازنہ کرتے ہوئے سینکڑا دہائی سے بڑا ہے نا، سینکڑوں کو پہلے موازنہ کرنا ہے۔ اس میں جو عدد بڑا ہے وہی عدد بڑا ہے۔ یہاں 2 سینکڑے ہیں، یہاں 3 سینکڑے ہیں۔ 2 اور 3 میں بڑا کون سا ہے؟ 3 ہی بڑا ہے نا؟ اس لیے یہ عدد 351 ہی بڑا ہے۔ اسی کو ہم نوٹ بک میں بھی بتا سکتے ہیں۔ اکائی، دہائی، سینکڑا اس طرح لکھ کر پہلا عدد لکھیں گے 239، 351۔ اب موازنہ کرتے ہوئے بڑے مقام سے آغاز کریں گے۔ 3 اور 2 میں کون سا عدد بڑا ہے؟ 3 بڑا ہے، اس لیے یہ عدد ہی بڑا ہوگا، 351 ہی بڑا ہوگا۔ اب ہم اور ایک مثال لے لیتے ہیں۔ اب ہم اور ایک عدد لیں گے، 239 اور 251۔ اب اسے دیکھو، 239 اور اس میں سے 100 نکال دیتی ہوں۔ ہم نے کیا کہا ہے کہ جو سب سے بڑا مقام ہے اس کا موازنہ کرنا ہے۔ اب ہم اس کو کر رہے ہیں، اس میں بھی 2 ہیں اور اس میں بھی 2 ہیں، یہ دونوں برابر ہیں۔ اس وقت ہم آگے کے مقام پر جائیں گے۔ سینکڑے میں دونوں برابر ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ عدد بڑا ہے یا یہ عدد بڑا ہے، ہمیں نہیں معلوم کون سا بڑا ہے، اس لیے آگے کے مقام کا موازنہ کریں گے۔ ان دہائیوں کا اور ان دہائیوں کا موازنہ کریں گے۔ اس میں 5 ہیں اور اس میں 3 ہیں۔ 50 بڑا ہے یا 30 بڑا ہے؟ 50 بڑا ہے نا، اس لیے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عدد ہی بڑا ہے۔ اس کو بھی اس طرح لکھیں گے، پہلا عدد 239 اور 251۔ یہ دونوں ایک جیسے ہونے کی وجہ سے ہمیں نہیں معلوم ہو رہا ہے۔ اب 3 اور 5 کا موازنہ کریں گے تو اس میں 5 بڑا ہے۔ 5 بڑا ہونے کی وجہ سے یہی عدد بڑا ہے۔ اگر صفر آ جائے تو کیا کیا جائے؟
ایک اور عدد لیں گے 4007 اور دوسرا عدد 3821 لیں گے۔ اس مرحلے پر پہنچنے پر چند بچوں کو فوری معلوم ہو جاتا ہے۔ اس کو اور اس کو موازنہ کریں گے تو جواب مل جائے گا، ہے نا؟ پہلے عدد کا موازنہ اگر کر لیں گے تو جواب مل جائے گا۔ اس طرح سمجھنا ایک طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اس سے کہاں مسئلہ پیدا ہوگا یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ ہم اب مقامی قیمت کا جدول بنا کر ہی اس کو کریں گے۔ اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار۔ اس میں پہلا عدد لکھیں گے 4007 اور دوسرا عدد 3821۔ اب چونکہ بچوں کو معلوم ہے کہ صفر کا مطلب کچھ نہیں ہے، اس لیے 4007 میں صفر کو دیکھ کر اس کو چھوٹا عدد سمجھنے کی توقع ہے۔ ان کے ذہن سے اس بات کو نکالنے کے لیے مقامی قیمت کو بتا کر سمجھانا ضروری ہے۔ 4007 کو اس طرح لکھتے ہیں۔ 3821 کو لکھ کر ہم بچوں سے پوچھیں گے کہ بڑے مقام سے موازنہ کرنا ہے یا اکائی کے مقام سے۔ بار بار اس کا اعادہ کرتے رہیں گے تو بچوں کو اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے۔ 4 بڑا ہے کہ 3 بڑا ہے؟ 4 بڑا ہے نا؟ اس لیے 4007 ہی بڑا ہے۔ 4007 ہی بڑا ہے۔ چند بچے بار بار بتانے کے باوجود بڑے مقام سے موازنہ کرنے کی بجائے اکائی کے مقام سے موازنہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ان کو ہم کیسے سمجھائیں گے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ ٹی ایل ایم کا استعمال کر کے دوبارہ سمجھایا جائے۔ اس کے علاوہ نوٹ بک میں 9 خانے بنا کر نمائندگی مرحلے میں دونوں اعداد کو بتا کر، جیسے یہ 4000 ہے، یہ 3000 ہے، اس طرح ایک ایک بات پھر سے یاد دلا کر سمجھایا جا سکتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں گی، آپ کے طلبہ اس کا جواب کس طرح سے دے سکتے ہیں؟ 927 اور 1205، اس میں بڑا عدد کون سا ہے؟ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، بچے پہلے عدد کو ہی موازنہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہلا عدد 927 میں 9 ہے، یہاں پر 1 ہے، تو 9 بڑا ہے یا 1؟ اس طرح دیکھ کر 927 ہی بڑا ہے، اگر ایسا جواب دیں گے تو کیا کریں گے؟ کر سکتے ہیں نا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے موازنہ کرتے وقت مقام کی قیمت کو نظر انداز کیا ہے۔ اس لیے ان سے اس طرح کی غلطیاں نہ ہوں، ہمیں ان کو مقامی قیمت کا جدول لکھوا کر مشق کروانی چاہیے۔ بچے اس طرح کی غلطی کریں تو ان کو سمجھائیں گے۔ اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، اس میں ہم 927 کو کیسے لکھیں گے؟ 900 ہیں، ہزار نہیں ہیں۔ 9 سینکڑے ہیں، 2 دہائیاں ہیں، 7 اکائیاں ہیں۔ یہاں 1000۔ یہاں 9 سینکڑے ہیں، 2 دہائیاں ہیں اور 7 اکائیاں ہیں۔ 1000 2 سینکڑے دہائی کے مقام پر کچھ نہیں ہے، اکائی کے مقام پر 5 ہیں۔ اب موازنہ کریں گے۔ اب پہلا مقام 1000 کا موازنہ کرنا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو صفر بڑا ہے کہ 1 بڑا ہے؟ 1 بڑا ہے نا؟ اس لیے 1205 یہی بڑا عدد ہے۔ اس طرح بچوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ اکثر ہم کیا کرتے ہیں، تیسری جماعت کے لیے 3 ہندسی عدد کا موازنہ ہے
चौथी जमात के लिए 4 हिंदसी अदद का मवाजना है। इनको क्लासरूम में सवालात भी इसी तरह के हम देते हैं। मवाजना के तमाम सवालात अगर सिर्फ 4 हिंदसी अदद के देंगे तो इस तरह की गलत फहमियाँ हमारे सामने नहीं आएंगी। इसलिए कद्र पैमाई के वक्त हम बच्चों को इस तरह के सवालात भी देकर इनकी समझ को, इनकी मालूमात को अच्छी तरह जान लेंगे, है ना? 2 अदद का मवाजना करते हुए एक अलामत के इस्तेमाल करने की रिवायत है। मिसाल के तौर पर 45 और 23, इसमें कौन सा अदद बड़ा है, इसको हम इसी तरह समझ लेते हैं। दोनों 2 हिंदसी अदद हैं, दहाइयाँ हैं, 4 दहाइयाँ और 2 दहाइयाँ। कौन सा बड़ा है? 4 दहाइयाँ बड़े हैं। इसका मवाजना करें तो जो अदद बड़ा है इसके सामने हम इस तरह की अलामत डालेंगे। इसको हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे? इस तरह की अलामतें लिखते हुए बच्चों को दिक्कत होती है। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है? इसके लिए एक कहानी सुनाएंगे। हम बहुत सारी बातें बच्चों को कहानियों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी इस तरह है, एक मगरमच्छ है, इसको बहुत भूख लगी है, बहुत भूखी मगरमच्छ है ये। तुम इसको कुछ खाने की चीजें देते हो? यहाँ बहुत ज्यादा सामान रखते हैं, यहाँ कुछ कम सामान रखते हैं। बहुत ज्यादा भूखी मगरमच्छ बड़े सामान को खाएगी या छोटे सामान को? बड़े को खाएगी, है ना? मगरमच्छ किस तरह होती है? मगरमच्छ का मुंह इस तरह होता है। मगरमच्छ जो बड़ा है इसकी तरफ जाकर इसको खा लेती है। अगर इस तरफ बड़ा है तो इसकी तरफ जाकर खा लेती है। इस तरह कहानियों के अंदाज में हम बच्चों को बताकर समझा सकते हैं। इसकी तस्वीर बनाएं। 45 और 23 में कौन सा बड़ा है? 45 बड़ा है। तो भूखी मगरमच्छ क्या करेगी? ये इसका मुंह है, ये इसकी आंख है, ये इसके दांत है। इस तरह एक तस्वीर बनाएं। मगरमच्छ बड़े अदद को खा जाती है। इस तरह बच्चों को तस्वीर बनाने का मौका दें। नोटबुक में सिर्फ इस तरह की अलामत बनाने की बजाय इसमें कुछ दांत, आँख, कान वगैरह बनाते हों। जब वो चौथी जमात में जाएंगे तो इन सब को छोड़कर सिर्फ इन अलामत का इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ बच्चों से होने वाली गलतियों को देखा है। यहाँ मैं कुछ और अहम बातें बताना चाहूँगी। निसाबी किताबों में और इम्तिहानात में ज़बानी गिनती और हिंदसी आदात के ताल्लुक से सवालात पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पर 3052 इसको आदात की शक्ल में लिखें। इस तरह का सवाल होता है, 3052 को आदात की सूरत में लिखें। चंद बच्चे इसको 3052 इस तरह लिखेंगे। आप सबने देखा है ना, बच्चे ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि इनको मकामी कीमत का तस्वुर समझ में नहीं आया है। इसके लिए बच्चों को दोबारा मकामी कीमत की पट्टियां रख कर समझाना है। तुमने क्या किया है? 3000 के लिए 3000 रखा है, 50 को 50 के लिए रखा है, 2 के लिए 2 ऐसा रखा है। ये 3000 हैं। 5 दहाइयाँ हैं, 2 इकाइयाँ हैं। तुम यहाँ कुछ भूल रहे हो, है ना?
सैकड़े के मकाम पर कुछ नहीं बताया है। 3052 इसमें अगर सैकड़े के ताल्लुक से नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब है सैकड़े के मकाम पर सिफर है। यहाँ पर सब्ज पट्टी रखना लाजमी है। अब ये 3052 हुआ है, इस तरह से लिखना है। इसलिए तुमने जो लिखा है वो सही नहीं है। सही जवाब 3052 इस तरह है। अगली बार अगर हिसाब करते हुए फिर से गलती हुई तो आप ये जदवल से समझा सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितने हजार हैं? 3000 हैं। 50 का क्या मतलब है? 5 दहाइयाँ। 2 का मतलब 2 इकाइयाँ। सैकड़े के मकाम पर क्या है? सिफर है, इसलिए इसको इस तरह लिखना है। इस तरह बच्चों को समझाएं। चंद बच्चे क्या करते हैं, 3052 लिखने के लिए 352 इस तरह लिख देते हैं। इस वक्त हम दोबारा क्या करेंगे, मकामी कीमत का जदवल बनाकर इनके पास ही इसको पढ़ने के लिए बोलेंगे। ये इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है। ये कौन सा मकाम है? सैकड़े का मकाम है। सैकड़े के मकाम पर तुमने 3 लिखा है। दहाई के मकाम पर कितना लिखा है? 5। इकाई के मकाम पर 2। अब इसको तुम पढ़ो। ये तो 352 हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है? 3000 पूछे हैं, है ना? यहाँ पर हजार का मकाम कहाँ है? तुमने नहीं लिखा है ना? इसलिए इसको दोबारा इस तरह लिखकर अब जो है इसको 352 कहते हैं। इस तरह इनको समझाना चाहिए। उस वक्त बच्चों को उनकी गलती का एहसास होगा और इन तमाम TLM को इस्तेमाल करके उसको ठीक करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा एक और गलती जैसे कभी कभी हम भी करते हैं, वो है नुमाइंदगी करते हुए। नुमाइंदगी मरहले में इकाई, दहाई और सैकड़ा। अब आप कोई 3 हिंदसी अदद बोलिए। 134 ठीक है। अब 134 में 4 इकाइयां हैं। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई। दहाई के मकाम पर 3 दहाइयां हैं। 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई। ये गलत है। यहाँ इस तरह लिखना चाहिए, 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई। उस कहानी में जैसे सुना था कि इस कमरे में दहाइयां हैं। इकाई के 10 का गिरोह बनाकर हमने यहाँ नुमाइंदगी करते हुए हर एक कमरे में रखा है। ये उनको बार बार समझाना चाहिए और लिखने के लिए कहना चाहिए। सैकड़े के मकाम पर 1 नहीं बल्कि 100 ही लिखेंगे। इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। अब एक और तरह का सवाल भी आ सकता है, ये इकाई का मकाम है, इसको हम 1 लिखेंगे। दहाई के मकाम पर 10 लिखेंगे। सैकड़े के मकाम पर 100 लिखेंगे। अब 134 के लिए क्यों न हम 134 को इस तरह लिखें, इकाई के मकाम पर 4 हैं, दहाई के मकाम पर 3, सैकड़े के मकाम पर 1। इस तरह क्यों नहीं लिख सकते? हमें मालूम है कि ये सैकड़े का घर है। यहाँ पर अगर 1 है तो इसका मतलब है 1 सैकड़ा। यहाँ हम ज़र्ब नहीं सिखा रहे हैं, ये ज़र्ब का तस्वुर नहीं है। हम ठोस मरहले से नुमाइंदगी के मरहले से होते हुए तस्वुराती की तरफ जा रहे हैं। अगर हम यहाँ इस तरह लिखेंगे तो वो रास्त तस्वुराती हो जाएगा। यहाँ हम जो नुमाइंदगी करेंगे, 134 जो हम नुमाइंदगी करेंगे, इसी को हम यहाँ लिख रहे हैं। कितने इकाई हैं? 4 इकाई हैं। 10 के कट में कितने हैं? चूंकि इस कट को मिलाकर 1 दहाई बनता है। 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई लिखेंगे। 1 ज़र्ब 10 का तस्वुर हमें यहाँ नहीं देना चाहिए। हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये नुमाइंदगी मरहला है। ये 100 की एक तख्ती होने के बावजूद, 1 ज़र्ब 100 होने के बावजूद, चूंकि हम यहाँ इसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये 100 हैं।
इसमें इस तरह की 100 इकाइयां हैं, इसलिए हम यहाँ 100 लिखेंगे। इस तस्वुर की हम यहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ 100 लिखना लाजमी है नुमाइंदगी मरहले में। आगे के मरहले में हम 134 ही लिखेंगे। ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये तस्वुराती शक्ल है। आगे जाकर बच्चों को यही सीखना है, लेकिन तस्वुराती का मुकम्मल तस्वुर आने से पहले ठोस मरहले से नुमाइंदगी मरहला होते हुए तस्वुराती की तरफ आते हैं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए। बड़े आदात जैसे 2 हिंसी आदात, 3 हिंसी आदात, 4 हिंसी आदात में भी मुतवातर गिनती और आदात की तरतीब बच्चों को सिखाना चाहिए। मुतवातर गिनती में क्या होता है? 10 में गिनती 10, 20, 30, 40 इन सब की मशक करनी चाहिए। इसी तरह एक आदत को 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 होंगे और इसमें 10 जोड़ेंगे तो 45, यानी 5, 15, 25, 35 इस तरह की मुतवातर गिनती भी बच्चों को हम सिखाएंगे। इस छलांग के दरमियान का फासला कितना है ये भी बच्चों को मालूम होना चाहिए। 1 से 2 मरतबा मुतवातर गिनती को गौर से देखने के बाद अगली गिनती का फर्क बच्चे समझ लेंगे। वो 5 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, या 50 हो सकता है, 20 भी हो सकता है। इस तरह मुख्तलिफ तरीके से बच्चों से ही मशक करवा कर इनको समझाएं। इसी तरह तरतीब भी मुतवातर गिनती की दूसरी शक्ल है। नंबरों की तरतीब से मुतालिक निसाबी किताबों में मौजूदा मशक करवा कर सिखाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ गौर करने वाली जो बात है, मुतवातर गिनती में 2 आदात के दरमियान का फासला 2 आदात के बीच का फासला मसावी होता है। आदात आपस में मसावी फासला रखते हैं, लेकिन नंबरों की तरतीब में 2 आदात के दरमियान का फासला या 2 हिंसी आदात के दरमियान का फासला तब्दील हो सकता है। हम एक मिसाल को देखेंगे। अब यहाँ एक मिसाल है, 10, 20, 30, 40। तो आगे के नंबर क्या हो सकते हैं? ये सवाल हम बच्चों से पूछ सकते हैं। यानी इन दोनों आदात के दरमियान का फर्क 10 है। इसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर के दरमियान का फर्क 10 है। 2 आदात के दरमियान की छलांग मसावी है। इस तरह आगे का आदत कौन सा हो सकता है? 40 और 10 को जमा करेंगे तो कितना होगा? 50 होंगे। इसी तरह और 10 जमा करेंगे तो 60 होंगे। ये मसावी फासला रखने वाली आदात की छलांग है। इसको मुतवातर गिनती कहते हैं। इस पर गौर करें। क्या ये मुतवातर गिनती हो सकती है? देखेंगे। इनके दरमियान के फासले का हिसाब करेंगे। 1 और 2 के दरमियान का फर्क कितना है? 1 है ना? 2 और 4 के दरमियान का फर्क कितना है? 2 है, यानी 2 कदम की छलांग। अब 4 से 7 की छलांग, यानी इनके दरमियान 3 कदम का फासला या छलांग है। अब 7 से 11 तक की छलांग, अब इनके दरमियान कितना फर्क है? छलांग 1 है, 2 है, 3 है, तो अब अगली छलांग 4 हो सकती है। 7 में 4 जमा करेंगे तो कितना होगा? 8, 9, 10, 11। 11 हो सकता है। हमने जो गिना है वो सही है। इस तरह हमारी गिनती सही है। अब इसी तरतीब में आगे के 2 नंबरात क्या होंगे?
اگلی چھلانگ متواتر کتنے فاصلے کی ہوگی؟ 5 ہونا چاہیے نا، یعنی 16 آئے گا۔ آگے کا عدد کون سا ہوگا؟ فاصلے کا فرق 6 ہوگا، تو اگلا عدد 22 ہوگا۔ اس کو ہم متواتر گنتی نہیں کہیں گے، اس کو ہم اعداد کی ترتیب کہیں گے۔ شروع میں یہ بچوں کو سیکھنے میں تھوڑا مشکل لگے گا، یہ ایبسٹریکٹ مرحلے کے سوالات ہیں۔ یہ ذہن کو طاقت دینے والا ایک چیلنج ہے، یہ ایک کھیل کی طرح بھی ہے، اسے ہمیں ذہنی ورزش کی طرح سکھانا پڑے گا، بچوں کی ہمت افزائی کرتے ہوئے۔ یقیناً آپ اس کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی خاص بات ہے، یہ ذہن کو ورزش دینے والا کوئی جادو ہے، ہم کر کے دیکھیں گے۔ اس طرح سے ہمیں انہیں سکھانا ہوگا۔ اب تک ہم نے مقامی قیمت اور اعداد کی ترتیب کے تعلق سے معلومات حاصل کی ہے۔ کلاس روم میں رنگ برنگی تدریسی وسائل استعمال کرتے ہوئے پرمسرت تدریس میں بچوں کے ساتھ شامل ہو جائیے، یہ ہماری گزارش ہے۔